So India has gone out of the tournament. We have been thrown out of. We have been, hammered out of this tournament by England. And today I have Sagar with me, one of my friends and colleagues. Sagar, what are your feelings? First of all, I would like to know what are your feelings on the ouster of India and the way they have been hammered and thrown. और Indian fans जो अभी इमोशनल हो रहे हैं, तो I just want to know what your feelings are. Yeah, I guess this was pretty much on the expected lines, right? So I don't think people would be that disappointed, to be honest, because the Hmm. way our top order was performing, so we knew that there is going to be a banana skin game for us, and eventually Hmm. it so happened that it was a semi-final, unfortunately. But but yeah, I would say if India would have gone on to even let's say even win the World Cup, it would have been an upset, to be honest, right? Because they were not the Hmm. favorite as such. I think England and Australia were favorites to begin with, right? Obviously, Australia got knocked out, but uh, after that, I think England were the potential winners, right? So if India would have even gone on to win the World Cup, I think that would have been an upset, to be honest, right? Or a surprise or a lucky escape, right? So I think from that perspective, I'm not really surprised. But yes, people would be disappointed, I guess, Hmm. given that it has been how long, like 9 years. Last we won an Hmm. ICC Cup in 2013, right? So we have been still searching for that. I think yeah, people would have been disappointed for sure. Hmm. बट सागर ठीक है, मतलब तेरा पॉइंट जो है 9 इयर्स का, मतलब डेट इज ऑल ओके. बट लेट अस कम टू दिस टूर्नामेंट. मतलब जैसे ही स्टार्ट हुआ, विराट कोहली ने एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, और फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट ही टुक द विक्ट्री टू इंडियन साइड फ्रॉम द जॉज ऑफ पाकिस्तानी. एंड Hmm. फिर उसके बाद टूर्नामेंट जैसे बिल्डअप हुआ, तो इंडिया ऐसा लगा स्ट्रांग होती जा रही है. नेदरलैंड्स एक मिनो टीम था, बट उसको इंडिया ने क्रैश कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट गेम आई थिंक साउथ अफ्रीका से था, वो हम हार गए. बट इट वाज अ वेरी क्लोज गेम, और हम लास्ट में हारे. मतलब कि 90 रन बना दिया एक्चुअली साउथ अफ्रीका ने लास्ट 10 ओवर्स में. उसके Hmm. बाद हम फिर बांग्लादेश से एक नैरो विन लिया हमने, जस्ट बाई 5 रन एंड विद द हेल्प ऑफ सम रेन. और लास्ट मैच जो था हमारा, वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सूर्या ने नाच नाच के हर जगह सेलिब्रेट किया. मतलब जो शॉट्स उसने, आउटरेजियस शॉट्स मारे. एंड ऑल क्रेडिट टू हिम, ठीक है, मतलब ही प्लेड वेल. बट अगर ये टीम को हम देखते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग से एंड तक, फ्रॉम नंबर वन ओपनिंग पेयर, फ्रॉम नंबर वन, दैट इज केएल राहुल. तो व्हाट विल बी योर रिव्यू ऑफ दिस टीम? मतलब कि अगर तुझे कुछ मैं बोलूंगा, एक रिपोर्ट कार्ड निकालो केएल राहुल का, मतलब तो उसको कितना नंबर्स तुम दोगे, मतलब केएल राहुल को एज एन ओपनर? Yeah, I think obviously KL Rahul ने innings तभी खेला when I think it did not matter so much. I think only one innings perhaps जो उसने खेला, I think बांग्लादेश, correct me if I'm wrong. I think हम्म. बांग्लादेश के साथ ही उसने एक हाफ सेंचुरी मारा था, which was much needed at that point in time, I guess. So I हम्म. think that innings only I think I would consider of some importance. I think second उसका जिम्बाब्वे के साथ था, which is okay, हम्म. which wasn't that great also, to be honest, right? So I would say maybe 4 out of 10, I guess, to KL हम्म. Rahul. Obviously, हम्म. when the chips are down, वो खेल नहीं पाता. जब जरूरत पड़ती है टीम को और other on big occasions वो खेल नहीं पाता. So I think it's हम्म. maybe too early to say, एंड but it doesn't give the confidence somehow कि ये कुछ कर सकता है. उसका जो स्ट्रेटेजी है, मतलब कि फर्स्ट ओवर मिडन खेलने का कुछ या बोल. फर्स्ट ओवर कॉन्जर्वेटिव खेलने का, उस पे मतलब कि क्या मॉडर्न गेम के अकॉर्डिंग लगता है कि केएल राहुल, ठीक है, उसने ऑरेंज कैप जीता है, अपने टीम को तो कभी नहीं जीता है उसने आईपीएल में, लेकिन वो ऑरेंज कैप जीता है और ये सब है. तो तुझे क्या लगता है कि डज ही फिट इन अ T20 टीम? लाइक इज ही अ T20 बैट्समैन और नॉट? दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू. सी ऐसा तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे नहीं सकते ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज देखो, हम्म. क्योंकि विराट कोहली भी अभी इन ए वे आई वुड से कि ऑब्वियसली इज विनिंग अस मैचेस. आई मीन अगर हम ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट पे देखें, हम्म. लेकिन ही इज नॉट द सेम विराट कोहली, राइट? अगर आई वुड से अगर वो प्राइम पे अपना होता विराट कोहली, तो 40 में 50 नहीं करता वो, एटलीस्ट 40 में 65-70 तो कर ही देता वो, फॉर श्योर.
राइट, हम्म अगर वो अपने प्राइम पे होता है, राइट। बेयर मिनिमम आई वुड से एटलीस्ट 40 पे वो 65 60 के आसपास होता है बेयर मिनिमम, उससे ज्यादा हम्म ही करता है आइडियली, बट उतना तो करता है हम्म बिकॉज दिस इज बेस्ट हम्म ग्राउंड और दिस इज मोस्ट प्रिफर्ड ग्राउंड, राइट। तो हम्म ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे नहीं सकते, दिस वाज अ बैटिंग ब्यूटी, राइट। आई डोंट नो व्हाई हम्म स्लगिश बैटिंग कंडीशंस बोल रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। हम्म सो वैसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे नहीं सकते, केएल राहुल कर नहीं सकता फ्यूचर में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो 2024 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी नहीं रहेगा अनलेस ही गोज रियली बैड आउट ऑफ फॉर्म। तो मुझे नहीं हम्म। लगता कि ही विल बी आउट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि अभी यंग है वो, एज ऑल्सो इज अच्छा, तो उसके यू आर साइड पे सीइंग है। ही विल बी देयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स इन स्कीम ऑफ थिंग्स में 2020। रहेगा अनलेस इज वोफुली आउट ऑफ फॉर्म, बिकॉज आई नो हाउ द इंडियन मैनेजमेंट थिंक्स, मेरे और तुम्हारे सोचने से कुछ होता नहीं है, राइट। तो मे बी वो हम्म। हो सकता है, मे बी वो नंबर 3 में एंकर बन जाए, विराट कोहली मे बी रिटायर ले ले, मे बी वो नया एंकर बन जाए, यू नेवर नो, राइट। Oh my God. तो हो That is सकता है, even आई more थिंक ओपनिंग scary. पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको देख नहीं रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक Hmm. नेक्स्ट 2 3 years में मे बी गिल एंड शॉ वुड बी द ओपनर्स आई गेस, और इवन ईशान। आई Hmm. थिंक तो यही दो आई थिंक होने चाहिए फ्यूचर ओपनर्स। Okay. Next World Cup is by the way in the USA and the West Indies. ठीक है. हाँ तो वो तो भी अगेंस्ट कंडीशंस ही है, तो एक एंकर हम्म तो वो लेके ही जाएंगे। सब हम्म स्लैम बैंग क्रिकेटर्स नहीं लेके जाएंगे, एक एंकर तो चाहिए हम्म। ही। क्योंकि अच्छा रोहित। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ने भी हमें समझाया है कि एंकर हमें चाहिए ही चाहिए, वी कैन नॉट गो विद ऑल स्लैम बैंगर्स, राइट। तो वो हम्म। चाहिए, बट यू हैव टू, वो एंकर भी ही हैज टू अडेप्ट, राइट, नहीं, क्योंकि एंकर एंकर भी भी नहीं बोल सकते हमारे उसको पास मतलब कोहली तो एंकर है ही, प्लस केएल राहुल हाँ, एडिशनली क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं. ठीक है, अगर वो एंकर है राइट, और वो अगर वो एंकर है तो वो 10 ओवर तक खेले ना, तब मैं मानूंगा कि वो एंकर है. हाँ, तब तो मैं राइट। मानूंगा बट कि दो वो लोग एंकर नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम तभी है। दो लोग हाँ एंकर ही करने लग गए आज। आज दो हाँ लोग एंकर कर रहे तभी प्रॉब्लम हो गया। दो हाँ लोग वही. एंकर नहीं कर सकते। अगर अगर रोहित हाँ शर्मा आज 15 ओवर खेलना चाहता था तो विराट कोहली हाँ. को मारना ही था आज। विराट कोहली भी हम्म. स्लो खेल रहा था, आई डोंट नो व्हाई। विराट कोहली तो अपना रोल प्ले कर रहा था, रोहित शर्मा का फॉल्ट है तो डेट. रोल प्ले कर रहा था ठीक है, लेकिन बातचीत क्या हो रहा था दोनों के बीच में, वो रनने हम्म बॉल जा रहा है, ये भी रनने बॉल जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता हम्म. है। बातचीत तो होना चाहिए ना दोनों दैट्स वेयर आई बैट्समैन में। कम टू रोहित शर्मा को कितना मार्क्स देगा आउट ऑफ हम्म। 10? जैसे तूने केएल राहुल को 4 दिया, तो रोहित शर्मा को रोहित कितना देगा? शर्मा को तो आई थिंक 3 या 2.5 आउट ऑफ 10 ही देना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ओ. क्योंकि वो पूरे पूरे साल भर बोलता रहा कि इंटेंट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, लेकिन जब चाहिए हम्म होता है बिग स्टेज में, जस्ट आई थिंक चिकन आउट, राइट। मे बी चिकन आउट. nerves got the यस. maybe nerve got the better of him. I don't know, he was nervy, I think वो, आई थिंक ही हैड I सम think there's इन्फ्लुएंस फ्रॉम ड्रेविड आल्सो कि तुझे ऐसा खेलना है हाँ, वैसा. ही चेंज्ड हिज गेम, मतलब ही डज नॉट लुक लाइक द रोहित शर्मा. हाँ, इनिशियली जो लग रहा था, आज तो वो बिल्कुल ही नहीं लगा, मतलब कि. और मुझे एक और चीज लगता है सागर, रोहित डज नॉट नो हाउ टू टेक सिंगल्स. डू यू थिंक कोहली कैन, मतलब कि कोहली कैन टेक दो सिंगल्स एंड विच रोहित कैनॉट? क्योंकि आज मैंने उसका बैटिंग देखा तो ही प्लेड 14 डॉट बॉल्स आउट ऑफ हम्म, 28 में उसने 14 डॉट्स खेले. 50% ऑफ हिज प्लेड बॉल्स आर एक्चुअली डॉट. और अगर तू विकेट को इंक्लूड कर दे तो 15 आउट ऑफ 28. तो उसके गेम में क्या लगता है, मतलब कि ही गोज फॉर द बाउंड्री या डॉट, बाउंड्री या डॉट, वैसा कुछ गेम है या? वो तुझे क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा को शूट सूट नहीं कर रहा है कि वो 4 5 ओवर में ब्लास्ट करके खेले और टेक हम्म द स्कोर टू 60 ऑन लेट्स से फॉर 1 विकेट। आई थिंक हम्म उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो खेल रहा है, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग आउट, राइट। तो आई हम्म थिंक वही सोच के वो अपना जो गेम है वो चेंज करके आज 15 20 ओवर खेलना चाहता था, बट अगेन वो आई थिंक वो फॉर्म उसका चला गया था बिकॉज ऑफ दैट हम्म हाइपर एग्रेसिव स्टार्ट्स व्हिच ही वाज ट्राइंग टू गिव, उसका फॉर्म उसी में ही चला गया इट सीम्स। जब आज यहाँ पे वो अपना स्ट्रेटजी चेंज करा चाहा तो वो कुछ नहीं हो पाया, राइट। तो एक्चुअली हम्म मुंह मुंह की खानी पड़ी उसको बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, हम्म राइट। तो आई थिंक वही होता है व्हेन यू सैक्रिफाइस योर ओरिजिनल गेम, जो कि विराट कोहली के साथ हुआ। विराट कोहली वाज ट्राइंग टू बी समवन एल्स बिफोर द हम्म एशिया कप, राइट। तो हम्म विराट कोहली वापस अपने टेम्पलेट में आ गया कि मुझे यही हम्म आता है, मैं यही करूंगा, राइट। हम्म लेकिन रोहित शर्मा अपना टेम्पलेट छोड़ दिया था, आई थिंक दैट इज व्हाट इट कॉस्टेड हिम, राइट। तो आई नेचुरल डोंट गेम थिंक नहीं उसको खेल रहा था, अपना अपना नेचुरल गेम नेशनल गेम नहीं चलता से था, ज्यादा एग्रेसिव होने का ट्राई कर रहा था, मे बी फॉर द टीम, राइट। मतलब मे तो आई बी. थिंक हाँ, हिज हम्म, इंटेंट वाज गुड बट मतलब वो हो नहीं पाया उससे, मतलब कि ही वाज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट. हम्म. राइट। तो आई डोंट थिंक सिंगल्स वाज इन दीज एवर ए कंडीशंस. कंसर्न फॉर हिम। हाँ, हाँ. सिंगल्स भले ही वो ना ले, बट ही इज अ फार बेटर प्लेयर देन केएल राहुल, अगर वो अपना पोटेंशियल हम्म के हिसाब से खेले, राइट। बट हम्म आई थिंक वो कुछ केमिस्ट्री जो है ना वो बैठ नहीं पाया विद केएल राहुल एज एन पार्टनर।
I think so. ओके नाउ कमिंग टू विराट, तूने थोड़ा उसको भी क्रिटिसाइज किया विराट को, तो मैं मतलब ही ऑलमोस्ट हैड अ परफेक्ट टूर्नामेंट, ऑलमोस्ट 300 रन्स इन दिस टूर्नामेंट, तो व्हाट वुड बी द marks out of 10 you will be giving him, Virat Kohli? Yeah, Virat Kohli definitely I would give around 7 only because of today's performance. Otherwise, you would have been I think 9 out of 10. Right, Hmm. 7 out of 10 I would give it. I think Hmm. today he could have played a far more impactful innings. Hmm. Especially जब उसको पता चल रहा था कि रोहित is struggling, तो it was his duty to take up the Hmm. up the ante. I don't know what he was Hmm. thinking. सब कुछ तो सूर्या नहीं कर सकता ना, सूर्या के ऊपर भी Hmm. प्रेशर आता है, वो भी इंसान ही है। आते ही ये Hmm. थोड़ी वो क्या बोलते हैं 200 स्ट्राइक रेट पे खेलना चालू कर देगा। Hmm. तो आई थिंक उसकी उसी की वजह से आई थिंक 7 दूंगा उसको। Hmm. हाँ मतलब विराट कोहली ने अपना रोल काफी अच्छा प्ले किया, एंड हम्म। टुडे बीइंग एडिलेड उसका जो फेवरेट ग्राउंड था, और जो लेंथ और लाइन डाल रहे थे इंग्लिश बोलर्स, स्पेशली स्पिनर्स जो डाल रहे थे, लिविंगस्टन एंड रशीद, तो विराट शुड हैव प्रोबेबली ट्राइड टू अटैक देम मोर, थोड़ा स्वीप खेलना चाहिए था या फिर हम्म। कुछ करना चाहिए था, स्क्वायर बाउंड्रीज। अभी हम अगर मैक्सवेल या फिर कोई रहता तो वो लोग स्विच हिट, वार्नर रहता तो स्विच हिट जरूर खेलता वो लोग, या कुछ भी हम्म। एक इनोवेशन जो कि आज दिखा नहीं विराट से। ही वाज प्लेइंग क्वाइट सेफ मतलब टुडे, इवन इन दैट हम्म। एंकर नॉक, मतलब मे बी असेसमेंट ही गलत था इंडिया का, मतलब विराट सोच रहा था कि 160 150 वुड बी प्रोबेबली, एक्चुअली दे वर गोइंग फॉर 145, Yeah. वो तो पांड्या की वजह से बन गया जो बन गया, बट एक्चुअली दे वर गोइंग फॉर 145, तो उनको लग रहा था शायद उतना ही इनफ हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, पता नहीं कैसे उनको ये लग रहा था, बट उनको कुछ मे बी फीलिंग आ रहा होगा। तो या कमिंग टू सूर्या नाउ, मतलब हमने देखा है बायलैटरल्स में ही इज आउटस्टैंडिंग, और मतलब वर्ल्ड कप में भी सारे मैचेस में द इम्पैक्ट, ही वाज प्रोबेबली गोइंग टू बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, अगर वो इंडिया फाइनल्स पहुंच जाता या जीत जाता तो हम्म। प्रोबेबली ही वाज गोइंग टू बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और वो है मतलब कि बोलर्स जो T20 का गेम है उसका पल्स उसको राइटली पता है कि मैं 6-7 बॉल लूंगा उसके बाद आई स्टार्ट अटैकिंग, और आज भी वो अटैक करने गया, बट एक फॉल शॉट जो कवर्स के ऊपर वो मारने का कोशिश कर रहा था वो पॉइंट Yeah. पे चला गया, डीप पॉइंट पे चला गया। तो सूर्या को हाउ मेनी मार्क्स यू विल गिव सूर्या आउट ऑफ 10, मतलब कि इसमें इस Hmm. वर्ल्ड कप में? I would also give him the same points only. Obviously, he played attractive shots. His innings was more attractive as compared to, let's say, Kohli. But हम्म. in terms of pure impact, I think he would also be around maybe 7.5 to 8. I guess not more than that. Because हम्म. जब जरूरत पड़ता है अगर तब आप नहीं खेलोगे तो obviously it will not matter so much, हम्म. right? तो I think वही 7.5 ही दूंगा उसको, maybe 7.5 yeah, out of 10. ओके, हार्दिक पांड्या, एक्चुअली आज एक बहुत अच्छा न्यूज था कि हार्दिक पांड्या के लिए कि मार्क वुड नहीं खेल रहा था, ठीक है, तो हम्म। हार्दिक पांड्या ने 125 130 का किंग है वो, 120 टू 130 अगर कोई बॉलिंग करे, और आज उसने दिखाया भी कि मतलब कि इस बॉलिंग को उससे अच्छा और कोई नहीं मार सकता है, और उसने भाई एडिलेड को मुंबई बना ही दिया था, मतलब एक 3-4 ओवर के लिए उसने जो अटैक किया है, एंड हेल्प्ड अस टू गेट अ रेस्पेक्टेबल टोटल। बट ओवरऑल हार्दिक पांड्या का टूर्नामेंट एज एन ऑलराउंडर, मतलब व्हाट डू यू फील एंड हाउ मेनी मार्क्स यू विल गिव हिम आउट ऑफ 10? Yeah, as an all-rounder, definitely I would give him around same only as to I've given to Sky, maybe around 8. 8 तो हम्म. दूंगा ही बिकॉज बॉलिंग में उसने काफी अच्छा बॉलिंग किया है ओवरऑल हम्म. अगर मैं देखूं तो स्पेशली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट दैट मैच ही टर्न्ड इट अराउंड तो हम्म. ओनली आई थिंक फॉर दैट रीजन स्पेशली एंड ओवरऑल आल्सो ही हैज बीन चिपिंग अवे एक दो विकेट तो वो ले ही रहा है हम्म. हर एक मैच में हम्म. भुवी को विकेट वाली ना मिले लेकिन पांड्या को विकेट मिल ही रहा था राइट तो आई हम्म. थिंक उसी की वजह से मैं उसको 8 तो दूंगा ही 8 आउट ऑफ 10 हम्म. हम्म. एंड डू यू हालांकि थिंक, बैटिंग वो बेटर कर सकता था। हम्म। हाँ एक्सट्रीम पेस के अगेंस्ट उसका एक ऑब्वियस हाँ। वीकनेस है, क्योंकि उसका बैकलिफ्ट इतना हम्म। हाई है तो इट टेक्स टाइम टू कम डाउन, द बैट टेक्स टाइम, और उतना में ही बॉल निकल हम्म। जाता है, और शॉर्ट पिच वो उतना नहीं खेल पाता है एट एक्सट्रीम पेस। बट आज उसने सैम करन और क्रिस वोक्स जैसे स्लोअर बॉलर्स के अगेंस्ट उसने आज दिखा दिया, और क्रिस जॉर्डन हम्म। के अगेंस्ट भी ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। सो Hardik Pandya, though, I think he will be one of the people along with Surya Kumar Yadav who will also sure shot play the next World Cup. I am not sure about the others, but you are saying KL Rahul also may play, and
अभी मैं हम्म कॉम्बिनेशन पे आता हूँ सागर थोड़ा। दो चीज यहाँ पे है। एक तो हमेशा दो ही डाउट रहा है, एक है पंत और डीके का। जो ये रहा इस हमारे पूरे वर्ल्ड कप में चलता रहा। शुरू में डीके खेला, फिर लास्ट में सडनली पंत आ गया, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ऐसा हम्म कुछ। डीके ने ऐसा कुछ बहुत खराब भी नहीं किया था, मतलब ठीक है। उसने एक दो चांस, उसको ज्यादा, वैसे भी वो डेथ ओवर का बैटर है, उसको ज्यादा मिला नहीं चांस। एक साउथ अफ्रीका का मैच आई थिंक उसने थोड़ा खराब बैटिंग किया, सिंगल्स नहीं लिया। हम्म बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पंत भी आया तो उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसको काफी ओवर्स था, वहां उसने कुछ भी नहीं किया, स्लॉग स्वीप एज यूजुअल अपना करके चला गया। 2019 से हम्म सेमीफाइनल में भी वही किया था। तो पंत और डीके में मतलब व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस? अब तो डीके का करियर ऑब्वियसली खत्म हो गया, ही इज गॉन, बट व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, तो डीके वुड हैव शुड हैव बीन प्लेइंग टुडे, और डू यू थिंक इंडियन मैनेजमेंट वाज राइट टू प्ले पंत? नो आई थिंक स्ट्रेटेजिक कॉल था, फेयर इनफ। आई थिंक अगर पंत को खिलाया तो ठीक है, लेकिन आई थिंक कैसे उसको यूज किया, दैट आल्सो वुड हैव मैटर्ड टू ए लार्ज हम्म, एक्सटेंट। मे बी हम्म। पांड्या को नहीं भेज के मे बी उन वो पंत को भेज सकते थे इन इंस्टेड ऑफ मुझ पांड्या जब आया। मुझे लगता है सूर्या हाँ। को जब भेजा तब एक्चुअली पंत को भेज देना चाहिए था, एक मतलब हम्म, तब वो अटैक कर सकता था लिविंगस्टन को। लिविंगस्टन के ओवर्स तो इंडिया ने इजीली जाने दिए, हाँ। मतलब अटैक ही नहीं किया लिविंगस्टन को। आई वाज शॉक्ड, मतलब कि वी वर हम्म। डिस्कसिंग इन द लास्ट वीडियो आल्सो। हम्म, नहीं, वो तो बैट्समैन के ऊपर है। देख अगेन वो हम मैचअप्स पे जा रहे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर स्काई हम्म, खेल सकता है अच्छा, तो डेफिनेटली ही शुड हैव कम। ही वाज द फॉर्म इन फॉर्म पर्सन। तो आई थिंक उसको मैं नीचे नहीं भेजता, लेकिन आई थिंक पांड्या की जगह मे बी पंत को मैं भेजता। ओके। सो यू आर, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन डीके इन दिस टूर्नामेंट? हाँ, डीके को ठीक है। डीके आज नहीं खेला, इट्स ओके। आई एम नॉट दैट कंसर्न टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक एडिलेड में स्क्वायर बाउंड्रीज के हिसाब से he could have utilized that better as a left hander. So that was fine हम्म, because आदिल रशीद को कोई तो नेगेट करने वाला चाहिए था। अगेन वी हम्म। आर थिंकिंग फ्रॉम मैचअप्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट इतना डिफरेंस नहीं बना था। आई थिंकिंग पर्सनली बट थिंकिंग, क्योंकि बट आदिल रशीद तो आया डीके ही नहीं काफी। ना उसके सामने, आया ही नहीं, मतलब वो तो हाँ, बहुत लेट आया राइट। पंत। हम्म, एग्जैक्टली वही तो गलती कर दिया। आई थिंक वो पांड्या की जगह में भी, या फिर या पांड्या की जगह पे ही शायद उसको आना चाहिए था। आई थिंक हम्म, गलती वही पे किया उन्होंने। लेकिन वही है, इफ यू वांट टू ट्रेड ऑफ तो कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए। इफ यू आर प्लेइंग सम हम्म। पर्सन इंस्टेड ऑफ अनदर पर्सन, कुछ वैल्यू ऐड आपको मिलना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज आप करके कुछ फायदा है नहीं। नहीं तो राइट, एनीवेज। मुझे लगता है अभी दो लेफ्ट हैंडर्स थे हमारे पास आज की टीम में, पंत और अक्षर, दोनों ही मतलब मैचअप्स। अगर आप मैचअप्स में बिलीव भी करते हो तो दोनों का आपने यूज किया नहीं है एज अ मैचअप, या जो भी आपने सोच के खिलाया होगा। ठीक है, अक्सर भी हम देख रहे हैं रेगुलरली खेल रहा है विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। एक नेदरलैंड्स का खाली मैच था जिसमें उसने विकेट लिया था थोड़ा, और उसका बैटिंग तो आ ही नहीं रहा है, बिकॉज प्रोबेबली इंडिया थोड़ा कॉन्जर्वेटिव ही खेल रहा है, या जो भी रीजन हो, उसका बैटिंग आया नहीं है अभी तक। एक दो बार आया है बैटिंग, तो दैट्स इट। एंड बॉलिंग भी उसने दो तीन ओवर डाला है, और आज शॉकिंगली उसको बोल दिया कि तू इतना बड़ा रोल प्ले करो कि पावर प्ले में बटलर को दो ओवर डालो आज। ठीक है, तो शॉकिंगली द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट बिकेम टू हाई ऑन अक्षर पटेल, बट ही हैज प्लेड ऑल द मैचेस ऑफ दिस टूर्नामेंट विदाउट डूइंग एनीथिंग। पहले तो आप उसको कितना स्कोर दोगे आउट ऑफ 10? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट अक्षर पटेल्स पार्टिसिपेशन ऑफ प्लेइंग एवरी गेम? एंड मतलब क्या आज चहल को होना चाहिए था उसकी जगह? तो फर्स्ट यू गिव योर व्यू अबाउट अक्षर, देन विल कम टू द चहल पार्ट। हम्म आई थिंक अक्षय पटेल को ऑब्वियसली आई वुड गिव मे बी अराउंड 3.5 to 4 ओनली, नॉट मच। थ्री एंड मे बी हम्म, 3.5 ओनली। ऑब्वियसली हम्म, उसका इतना इम्पैक्ट रहा नहीं, फॉर वट एवर रीजन। इट्स हार्ड टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली क्यों नहीं रहा। आई थिंक कॉन्फिडेंस लेके ही वो आए थे यहाँ पे, काफी अच्छा करा था उन्होंने। आई थिंक वेस्ट इंडीज हम्म, टूर से हम्म, काफी अच्छा ही करा हुआ था उन्होंने। नॉट जस्ट इन हम्म, इंडिया, आई थिंक अब्रॉड, आई थिंक कहीं और भी हमने खेला। इनफैक्ट एशिया कप में भी आई थिंक कुछ मैच खेले थे उन्होंने, तो ठीक ही ठाक हम्म, बॉलिंग कर रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम्म, राइट, तो एंड बैटिंग वाइज भी अच्छा इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहे थे। यहाँ तो हम्म, ना बैटिंग चला ना बॉलिंग चला। आई थिंक वो थोड़ा हम्म, सा स्ट्रेंज लगा इन वे। आई मीन पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है कि क्यों उनका नहीं चला, क्योंकि अगेन वो भी बहुत नीचे आते हैं। नीचे आके हम्म, इम्पैक्ट बनाना भी बहुत इजी तो होता नहीं है वैसे, कि आके ही आप छक्का चौका मारने लगो, बट इट्स हार्ड टू से कि क्यों नहीं वो चल पाए।
स्पेशली हम्म बॉलिंग उनका रिलायबल रिलायबल वेपन रहता है, बॉलिंग भी उनका चला नहीं, तो आई थिंक दैट माइट बी बिकॉज ऑफ पिचेस, हार्ड टू से। हम्म अगेन इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि हम स्पिन स्पिन वाइज वी वर वेरी वीक टू बी ऑनेस्ट। So coming to that Chahal question now, on big grounds, every team other than India has a leg spinner. So we were not able to pick middle wickets in the middle overs. So don't you think Chahal should have played right from the beginning, not today, but right from the beginning? And if या not right from the beginning, at least today, मतलब कि on Adelaide at या least. या मैं तो वही इनफैक्ट डे वन से यही बोल रहा हूँ कि चहल क्यों नहीं खेल रहा है। हारते तो हारते, हम्म अब कोई कोई दिक्कत नहीं, इज योर अटैकिंग स्पिनर, राइट? वैसे भी हम्म आप हारते ही हो विद कंजर्वेटिव अप्रोच, हम्म जीते तो नहीं हो आप अश्विन को लेके। इट वाज, आई डोंट नो हम्म व्हाट वाज देयर थॉट प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज रोहित ऐसा डम तो नहीं है कि ही डजंट अंडरस्टैंड कि अटैकिंग प्लेयर्स, अटैकिंग स्पिनर्स या फिर अटैकिंग बॉलर्स को खिलाना चाहिए, क्योंकि हम्म भुवी आपका डिफेंसिव पे चला जाता है, राइट? तो ही जस्ट वांट्स टू बी कंजर्वेटिव एंड गिव, प्रोटेक्ट हिज इकोनॉमी, राइट? इकोनॉमी के लिए वो फोकस करता है, ज्यादा विकेट मिल जाए हम्म इज अ बोनस फॉर हिम, इट डजंट हम्म अटैक दैट मच, राइट? तो अगर स्पिनर भी अगर वैसे निकल जाए तो फिर आप तो विकेट नहीं पाओगे, राइट? यू आर जस्ट हम्म रिपीटिंग द सेम स्टोरी जो कि आपने लास्ट ईयर जो गलती की, राइट? तो आई हम्म थिंक इट वाज सेंसलेस टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आई डोंट नो हाउ समवन नेवर आस्क्ड एनीवन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो। आप ही देखते होंगे, मे बी आप बता सकते हैं कि किसी ने पूछा कि नहीं, आई डोंट नो नहीं पूछा क्या। चहल पे। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन चहल, तो देयर वाज नो क्वेश्चन ओनली। आई थिंक पहले ही उसने कुछ मे बी रिप्लाई दे दिया होगा, या फिर पहले ही उसने बोल दिया होगा कि ये क्वेश्चन मत पूछो। बट आई डोंट नो, मतलब आई एम शॉक्ड, क्योंकि लास्ट ईयर वी वर रिग्रेटिंग कि चहल नहीं था स्क्वाड में, और इस बार स्क्वाड में होके राइट। हमने ऑस्ट्रेलिया में उसको नहीं खिलाया, तो आई एम शॉक्ड। और ऐसा नहीं कि उसने प्रैक्टिस मैच में कुछ बहुत खराब बॉलिंग किया या एनीथिंग, बट आई डोंट नो इफ ऋषभ पंत कैन बी ब्रॉट इन लास्ट मोमेंट। आप उसको डीके को हटा के जिम्बाब्वे वाले मैच में खिला रहे हो, तो चहल कुड हैव आल्सो प्लेड। इंडिया हैड क्वालिफाइड फॉर द सेमीज ऑलरेडी। तो कंजर्वेटिव, अनइमेजिनेटिव, ट्रेडिशनल, दैट्स ऑल आई कैन से। मतलब कि इट्स जस्ट यू आर रिजिड इन योर माइंडसेट कि हम यही खिलाएंगे, तो आप बिल्कुल और कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। यू आर जस्ट ब्लाइंडेड बाय द रिजिडनेस ऑफ योर अप्रोच। एनीवे अश्विन, आई विल कम टू अश्विन। तो हर मैच में ही पिटा है। कुछ बात करनी है। हाउ मेनी पॉइंट्स फॉर अश्विन यू विल गिव? Ashwin, maybe I will give him around 5.5 to 6 because he saved us against Pakistan. That was the only reason. Otherwise, he would have also got maybe around Otherwise three he would have got and a half, one. maybe around 3 or 2. That's what I would have given him. Right. I think only because of that, maybe around give him around 5.5 to 6. Yeah, and he had some contribution against Bangladesh also, with batting. With batting actually अक्सर से उसने ज्यादा contribute किया इस टूर्नामेंट में। Yes. बट विथ bowling obviously, ठीक है, एक विराट कोहली का कैच ड्रॉप था एडन मार्करम का। अपार्ट फ्रॉम दैट मिलर ने तो उसे स्मैश किया। उसके बाद इवन मतलब कि uh, अभी आज के मैच में अगेन ही वाज टेकन अपार्ट। एंड आई मीन इजी, मतलब क्यों उसको खिलाते हैं? मतलब कि वो स्कीम में कभी रहता नहीं है, सडनली लास्ट मोमेंट में आ जाते हैं। एशिया कप में आ Hard to गया say. Hard to say. सडनली। ये कंजर्वेटिव I think in अप्रोच का ही एक actually, वो है क्या? ah, obviously, I think it's hard to pinpoint to be honest. Again, क्योंकि शास्त्री के अंडर भी अश्विन खेला, रोहित एंड द्रविड़ के अंडर भी अश्विन खेला, तो हार्ड टू से कि क्यों खेल रहे। आई थिंक आंसर वही दे सकते हैं। दुबई हम्म में ठीक है, फिर भी आपने चांस लिया तो समझ में आता है, हम्म लेकिन वहां पे भी चाल नहीं थे जो कि आपके अटैकिंग स्पिनर थे, हम्म राइट? आई थिंक, और यहाँ पे भी नहीं थे। आई थिंक मिस्टेक तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट? तो चाल को खिलाना ही चाहिए हम्म था, राइट? अगेन आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थिंक चहल दोबारा से खेलेंगे और अश्विन बेंच पे बैठेंगे। आई डोंट नो, फिर मे बी चैंपियंस फिर ट्रॉफी वर्ल्ड अगर कप में होना आ है तो आई डोंट जाएंगे। नो। 2024 वर्ल्ड कप के टाइम ही आ जाएंगे अश्विन। फिर चहल बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत मुश्किल है कि टू पिन पॉइंट करना कि क्या लॉजिक रहता है इन लोगों का, क्योंकि मैनेजमेंट भी बदल चुका है बाय द वे, राइट? एंड स्टिल दे आर बैकिंग अश्विन। इट्स हार्ड टू से टू बी ऑनेस्ट, इवन आई एम डम्फाउंडेड। Okay, so now we come to our pace bowling attack, the trio of the golden trio of Bhuvi Kumar, Mr. Bhuvneshwar Kumar, जो आज एक बॉल देख के डर गया था जॉस बटलर को, और
भुवनेश्वर कुमार, हाउ विल यू रेट हिम? जहां पे स्विंग मिला तो उसने स्विंग किया है, और ऑब्वियसली उसका डेथ में ज्यादा कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी था नहीं इस बार। हम्म, तो हम्म। क्या मतलब भुवनेश्वर कुमार का व्हाट विल यू से अबाउट हिम, एंड Yeah, हाउ मेनी Bhuvneshwar मार्क्स यू Kumar विल को गिव? maybe, yeah, Bhuvneshwar Kumar को maybe I will give him maybe around 5 only, maybe 5 about on 10, not much because I would go by impact. In impact के हिसाब से इतना तो कुछ खास किया नहीं other than just maybe saving runs, but saving runs will not make you win matches, right, or even tournaments for that matter, right? So that is not going to help you, especially अगर आपका batting is not firing to the extent that you needed to, और स्पेशली अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अटैक करना ही था, राइट? तो ना कोई वेरिएशंस दिख रहा है उनके पास, ना कोई स्लोअर बाउंसर्स दिख रहा है, जो कि मस्ट है T20 गेम में, राइट? तो आप बोल नहीं सकते कि मुझे तो खाली ये वाइड लेग कटर्स ही आते हैं, वाइड लेग कटर्स से डालूंगा, राइट? तो वन डायमेंशनल आप हो जाते हो बहुत जल्दी, राइट? हम जब भी आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आई थिंक आपका स्ट्रेंथ को आपको बैक करना ही चाहिए था। आई थिंक अर्ली ऑन थोड़ा सा स्विंग मिल रहा था, तो ठीक है, आपने चलो मान लिया ऋषभ पंत को आगे बुला भी लिया, तो मे बी आपको एटलीस्ट स्विंग पे तो फोकस करना चाहिए था, राइट? स्विंग भी आपने अगर आप छोड़ के अपना लेंथ पुल पुल करके पीछे ले लोगे तो स्विंग भी नहीं होगा, राइट? तो एटलीस्ट आप बॉल को पिचअप करते, थोड़ा स्विंग की कोशिश करते सो दैट बटर एलबीडब्ल्यू होता, या फिर एटलीस्ट एलबीडब्ल्यू तो होता वो, इन स्विंग कराते आप, राइट? तो वो भी आई थिंक आपने किया नहीं, अपने लेंथ आपने खींच लिया पीछे, तो आई थिंक आपको रोटेट कर पाए, हिट्स भी मार पाए। तो आई थिंक कुछ जम नहीं रहा है, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, भुवी का, बिकॉज इनिशियली तो उन्होंने अच्छा ही खेला था। आई थिंक बिफोर एशिया कप ही वाज रियली गुड। एशिया कप से उनका आई थिंक एग्जैक्टली। धीरे धीरे थोड़ा सा नहीं, भुवनेश्वर जब लास्ट वर्ल्ड कप में खेला था तो सबने बोला था बाय बाय भुवनेश्वर, तुम्हारा टाइम हो गया, जब हिट। रिजवान ने उसको मारा था, रिजवान और बाबर ने। उसके बाद फिर से आ गया वो, बहुत अच्छा बॉलिंग करने लगा। इंग्लैंड में उसको एक सीरीज मिल गया लकीली, एंड वहां पे उसने बहुत स्विंग कराया, बहुत अच्छा बॉलिंग किया, एंड सडनली ही वाज इन द कंटेंशन फॉर इंडियन टीम। एंड जब फिर से टाइम आया, अगेन ही चोक्स, बहुत ज्यादा प्रेशर में दिखता है। और ये आईपीएल में भी मैंने देखा है, मतलब कि वंस ही स्टार्ट्स गोइंग फॉर रन्स ही लूजेस दैट अटैकिंग मेंटालिटी, प्रेशर में आ जाता है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है। मुझे कभी लगता नहीं इज इन द कंट्रोल व्हेन इज अंडर प्रेशर। वो वाला चीज मिसिंग है उसमें। डेथ ओवर में भी हमने देखा, 19th ओवर के लिए अब वो फेमस ही हो गया है हर जगह। तो आई डोंट नो, मतलब कि यू हैव गिवन 5, बट आई वुड प्रोबेबली, ठीक है उसने वो बहुत अच्छा बॉलिंग किया, कोई मिनोज के अगेंस्ट उसने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, तो ठीक है 5 इज फेयर आई थिंक। बट या वेरी डिसअपॉइंटेड विद भुवीज बिग मैच। अब या कन्वर्शन कभी नहीं हो पाते, कभी हो ही नहीं पा रहे। ये विकेट्स तो आपको लेना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको विकेट्स लेना ही पड़ेगा, मतलब हाँ, भले ही आप 3-4 विकेट ना लो, एटलीस्ट आपको एक विकेट तो लेना पड़ेगा अपफ्रंट, बिकॉज यू आर स्विंग बॉलर, तो आपका काम ही वही है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, क्योंकि अर्शदीप को उन्होंने बोला कि आप स्विंग कराओ, मे बी भूवी आप रन कंटेन करेंगे, ये प्रेशर डालेंगे एक एंड पे, आप विकेट लो। अगेन अगर वो स्ट्रेटेजी था तो बहुत खराब स्ट्रेटेजी था, आई थिंक इट फेल फ्लैट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर स्विंग बॉलर्स, राइट? स्विंग बॉलर्स का काम ही है कि स्विंग कराए वो। आप बोल नहीं सकते कि आप लेंथ पुश पीछे ले आओ, आप रन्स कम दो, इकोनॉमी पे फोकस करो। तो आई थिंक ये वो स्ट्रेटेजी था, बहुत खराब स्ट्रेटेजी था। ओके, सो 5 आउट ऑफ 10 फॉर भुवी। एंड अर्शदीप को आप कितना दोगे? अर्शदीप मतलब अर्शदीप का एक्चुअली काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा, एंड ही वाज एक्चुअली इंडियाज नंबर वन बॉलर इफ यू सी, like in terms of number of wickets taken or the impact made in the game today also. I was shocked when रोहित ने उसको सेकंड ओवर नहीं दिया, अक्षर पटेल को दे दिया सेकंड ओवर। तो आई वाज जस्ट हम्म। शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अर्श, व्हाट्स योर व्यू अबाउट अर्शदीप? हाँ, अर्शदीप को डेफिनेटली आई थिंक सेकंड ओवर आज देना चाहिए था, अगर उनको स्विंग मिल रहा था फर्स्ट ओवर में तो देना तो चाहिए था डेफिनेटली। आई वुड गिव हिम मे बी अराउंड 8.5, 8 to 8.5 आउट ऑफ 10, सेम एज विराट कोहली। आई थिंक वो हमारे स्टार परफॉर्मर डेफिनेटली रहे हैं इन दिस टूर्नामेंट। Only the area of improvement could be his death bowling, right? I think that has tapered off to an extent, but I think overall बहुत अच्छे पैकेज हैं। भुवी को डेफिनेटली वो रिप्लेस कर सकते हैं। आई थिंक भुवी मे बी इट्स टाइम अप फॉर हिम। तो आई थिंक भुवी की जगह पे वही अब अभी हमारे फ्रंट लाइन स्विंग बॉलर रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड, बट ही वुड नीड अ गुड आउट एंड आउट फास्ट बॉलर टू कम्प्लीमेंट हिम।
राइट, अदरवाइज आई थिंक वो बैठेगा नहीं कॉम्बिनेशन सही, राइट। तो आई थिंक वो देखना पड़ेगा कि कौन हो सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन, मे बी Okay. मोहसिन खान या फिर उमरान, या And what about Mohammad Shami, the last number 11 of India? What do you feel was he good in this tournament? ही वाज गुड, बट देन आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों कॉन्फिडेंस उनका नहीं था इंडियन टीम मैनेजमेंट का समी पे, क्योंकि Hmm. फ्लैट पिचेस पे ही इज आल्सो लॉस्ट। फ्लैट पिचेस में उनको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, राइट। यहाँ Hmm. पे पेस है, बाउंस है, तो वहां पे वो संभाल लेते हैं। Hmm. इनफैक्ट थोड़ा स्विंग भी हो तो वो संभाल लेते हैं, लेकिन Hmm. जब डेथ ओवर्स में स्पेशली और मिडिल ओवर्स में भी उनको कुछ समझ में आता नहीं कि क्या किया जाए फ्लैट फ्लैट डेक स्पेशली, क्योंकि उतना Hmm. वेरिएशन उनके पास है नहीं, स्लोअर बाउंसर या फिर नकल बॉल वगैरह वो सब इतना है नहीं उनके पास। तो आई थिंक वो Hmm. एक लिमिटेशन है उनका। और आज Hmm. आज एक्सपोज हो गए इन ए वे वो, बट तो आई विल गिव हिम मे बी अराउंड 6.5, आई विल गिव हिम आउट ऑफ 10। Hmm. हालांकि उन्होंने काफी अच्छा बॉलिंग किया है बिफोर टुडेस मैच, बट स्टिल Hmm. आई वुड नॉट से कि इतना कन्विंसिंग था, तो मे बी दैट्स व्हाई आई विल Hmm. गिव हिम मे बी अराउंड 6.5 और 10। Hmm. एंड मैं एक अभी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, डू यू थिंक यहाँ पे हमें उमरान मलिक चाहिए था, और हमारे एक और जो पेसर था स्क्वाड में वो था हर्षल पटेल, तो मे बी एडिलेड में क्या हर्षल पटेल को खेलना चाहिए था क्योंकि उसके पास स्लोअर बॉल था, या उमरान मलिक को स्क्वाड में होना चाहिए था और उमरान मलिक शुड हैव बीन द फोर्थ पेसर, या फिर शामी के जगह में उमरान मलिक को खेलना चाहिए था? तो उमरान एंड हर्षल, आई जस्ट वांट यू टू कमेंट ऑन बोथ ऑफ दीज कि क्या इनका वो रहा है। नहीं, उमरान को अगर खिलाना था तो यू हैड टू बैक हिम, राइट। ऐसा नहीं कि हम्म. 2 मैच खिला के उसको बिठा दिया आपने, राइट। तो हम्म. उसको ग्रूम करना ही चाहिए था, अगर आप भले ही मैच हारो जीतो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया वांट्स टू विन एवरी मैच, बायलैटरल में आपको हारना पड़ेगा टू विन हम्म. टूर्नामेंट्स, राइट। सो आपका स्ट्रेटेजी वो होना पड़ेगा, गोइंग हम्म. फॉरवर्ड आपको बायलैटरल्स हारने पड़ेंगे इफ रिक्वायर्ड टू एक्सपेरिमेंट विद द राइट सेट ऑफ पीपल एंड दे हैव टू बी बैक्ड आल्सो। ऐसा नहीं हम्म. कि इन्वेस्ट किया 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 फिर आप छोड़ दिए उसको लास्ट मोमेंट में, जैसे कि आपने आवेश खान के साथ किया, या फिर लेट्स से आई हम्म. थिंक आपने चहल के साथ भी वैसे ही किया, हम्म. अनफॉर्चुनेटली, जो कि not worth chucking him at the fag end. He was not worth it. He was obviously an हम्म. established player, but still आपने हम्म. उनको साइडलाइंस पे रख दिया, राइट। तो ऐसा आपको हम्म. नहीं करना है, आपको खिलाना ही है उनको। ऑब्वियसली हम्म. चहल को, सॉरी, हर्षल पटेल को आपने नहीं खेला है, दैट मेक सेंस, क्योंकि वो हर एक मैच में कंसिस्टेंटली क्लोज टू 50 रन दे रहे थे, तो दैट हम्म. मेड सेंस टू मी। लेकिन मे बी आज खिला सकते थे, मे बी, अगेन दैट्स ए मे बी, नॉट नेसेसरली हम्म. खिला सकते थे, मे बी हम्म. कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि आपने आपने चहल को भी नहीं खिलाया और हर्षल पटेल को हम्म. भी नहीं खिलाया, मतलब आपके पास कोई विकेट टेकिंग या फिर कोई सरप्राइज या हम्म. फिर कोई एक्स फैक्टर नहीं था बेसिकली बॉलिंग में, हम्म. राइट। तो दैट वाज अ बिग रिस्क व्हिच दे हैड टेकन, आई डोंट नो क्यों लिया हम्म. वो रिस्क, बिकॉज डिड नॉट मेक सेंस टू मी, क्योंकि हम्म. एडिलेड एक फ्लैट डेक है, आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए ही हम्म. चाहिए यहाँ पे, जो कि हम्म. इंडिया के पास नहीं था आज। Okay, and how would you rate Dravid and the team management, like their conservative approach and their unimaginativeness, no experimentations, and their selection? Basically, it all comes down to selection. So, how will you rate the team management, Rohit and Dravid? Hmm. Yeah, I think obviously it was poor. I mean, especially from two point of view. One is obviously not giving Chahal a game. वो एक बड़ा एस्पेक्ट Hmm. रहेगा, एंड सेकेंडली Hmm. रहेगा आपने यू परसिस्टेड विथ केएल राहुल एट द टॉप। आई थिंक Hmm. आपको काफी पहले से ही मे बी वो कॉल लेना चाहिए था कि मे बी यू वुड हैव बैक्ड पंत एज द ओपनर। आई थिंक वो Hmm. ब्रेव कॉल आपने लिया नहीं, Oh, क्योंकि big आपको one. पता है कि रोहित वाज आल्सो स्ट्रगलिंग, राइट। Hmm. तो आई थिंक वो एशिया कप से ही ले लेना चाहिए था वो कॉल, बट यू Hmm. डिडंट हैड द गट्स टू बेसिकली टेक दैट स्ट्रांग कॉल। Hmm. So only for these two, aspects, maybe I will rate them maybe around 4.5 on 10, 4.5 to 5 on 10. Yeah, it's not more than that. Hmm. राइट। तो मतलब मैंने एक्चुअली आई जस्ट रिकॉर्डेड वॉट एवर यू सेड सागर, सो आई जस्ट शो दिस, सो these are basically, so you are seeing, can you see this? Yeah, yeah, you can see. So just a minute, I am not able to see it. So I think these are your rankings. So you are saying Rohit is 2 out of 10, KL 4 out of 10, Virat 7, Surya 7, Pandya you are saying 8, or you are saying 8, or and Aksar 4, Ashwin 5, Bhuvi 5, Arshdeep 8.5, and Shami 6.
So this is what your scoring looks. India's team report card looks Yeah, like. maybe Virat ko you can make it 7.5. अच्छा, विराट को 7.5. ओके. ओके. एंड पांड्या को भी 7.5 या 8 देना है इसको. हाँ 7.5 कर सकते हैं, आई थिंक दैट बट शुड बी बिग फाइन, मैच सेवन में एंड हाफ खेला कर है, सकते चलो आज 8 देते हैं. हैं। एटलीस्ट हाँ. ही हम्म. प्लेड इन द बिग मैच. तो लेट्स गिव हिम 8. ठीक है. तो दैट इज द स्कोर कार्ड. एंड इंडियन फैंस को अगर मैं इसमें कोई नंबर दूंगा ना, तो मैं एक्चुअली 0 दूंगा, क्योंकि आज मैंने देखा है बहुत सारे इंडियन फैंस एक्चुअली पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं. एंड ऑब्वियसली दे क्वालिफाइड मिराकुलसली, दे हैड सम लक, they have also played some good cricket. So guys, please respect that. And आप उनके इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे हो या फिर कुछ भी, तो क्या उखाड़ लिया हमने बहुत हाई फाई इंग्लिश बोल के? मतलब कुछ ऐसा हमने उखाड़ा नहीं है. हम भी लकीली जीते हैं 2-3 मैच. बारिश की वजह से बांग्लादेश से हम बच गए. हम्म. एंड विराट कोहली ने बचा लिया एक मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट. सो दे ऑल्सो हैड सम लक फेवरिंग देम with a massive upset of Netherlands. So let's give our due Yeah. respect, and they've been one of the top teams, and they're peaking at the right time. I feel Sagar, peaking at the right time is very important in these Yes. knockouts. आप Yes. जिम्बाब्वे बांग्लादेश के अगेंस्ट उड़ रहे हो, हंसी मना रहे हो, खुशी मना रहे हो, अभी कुछ काम नहीं देगा इफ यू आर नॉट देयर इन द. और आज जैसे रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया ना, मतलब सबसे डिसहार्टनिंग था कि ही वाज सेइंग कि वी आर गुड प्लेयर्स, डोंट जज अस बेस्ड ऑन नॉकआउट. तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था. आई थिंक वो डिफेंसिव हो गया स्टार्टिंग से ही, आई गेस यार. ठीक. हम्म. तो वही आई थिंक कोहली भी लास्ट आई थिंक पाकिस्तान के मैच में बोला ही था कि क्या चल रहा था ड्रेसिंग रूम में. आई थिंक प्रेशर काफी हो गया था आई थिंक 2021 में भी, कि हम्म. बेसिकली फियर ऑफ फेलियर आई थिंक वो उनको खा गया था आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में. आई थिंक आज भी आई थिंक इन्हें भी वही हुआ, राइट. तो हम्म. अनफॉर्चुनेट है आई थिंक. मीडिया का प्रेशर, आई थिंक लोगों का प्रेशर, हम्म. maybe it's taking a toll on them. Maybe Dhoni was immune to that. That's हम्म. maker. I think these guys are after all normal human beings. So I guess not everybody can be that immune. So प्रेशर आ ही जाता है आई थिंक. यू नो अगर हम देखेंगे धोनी के अंडर भी बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक होते थे, लेकिन वो हम्म. कुछ भी करके निकाल लेता था. आई थिंक मैच निकाल लेता था कुछ भी करके. हम्म. यू नो आई थिंक वही चीज नहीं हो पा रही है. ऑब्वियसली लक फैक्टर भी था करके बहुत लोग बोलते हैं, हम्म. लेकिन बॉलिंग उसके पास भी कुछ खास नहीं था. काफी ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक था उसके अंडर भी, हम्म. राइट. आई थिंक स्टिल हमने कप जीते हैं, तो आई थिंक वो मिसिंग है आई थिंक अभी. और प्रेशर हैंडल हम नहीं कर पा रहे आई थिंक ठीक 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 तरीके से. या हम्म. ठीक है सागर, there I'll stop you, and we are at the end of the video. Thank you guys for watching, and keep following and subscribing our channel, and we'll be bringing more coverage to you. So thank you guys, thanks, and thanks for listening in.